بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے گریس سمندر کے قریب ایرانی آئل ٹینکر کو ضبط کر لیا۔ تہران میں سوئس سفارتکار کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ رشیا نے ایسٹ یوکرین کے اہم شہر پر قبضہ کر لیا، کئی علاقوں میں خوفناک بمباری۔ رشیا ایسٹ یوکرین کے شہروں کو راکھ کے ڈھیر میں بدلنا چاہتا ہے، زیلنسکی کا الزام۔ پاکستان میں عمران خان کا دھرنا ختم، حکومت نے کہا ہمیشہ کے لیے اسلام آباد میں جلوسوں پر پابندی لگائیں گے۔ شیرین ابو عاقلہ کے قتل کا معاملہ عالمی عدالت لے جائیں گے، جرنلسٹ تنظیموں نے کیا اعلان۔ مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی میں لاکھوں فلسطینیوں کا اجتماع، نماز فجر کے لیے خصوصی مہم۔ اب اجمیر درگاہ کو بھی مندر قرار دے دیا گیا، ہندو تنظیم نے کہا دیواروں اور کھڑکیوں پر سواستک کے نشان ہیں، کھدائی کی جائے، خادمین نے دعویٰ رد کر دیا۔ آرین خان کو ڈرگز کیس میں کلین چٹ، نارکوٹکس بیورو نے تمام الزامات واپس لے لیے، سمیر وانکھیڑے کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ ہیڈ لائن سے آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ سے شروعات کرتے ہیں۔ فلسطین میں نماز فجر میں زیادہ سے زیادہ نمازیوں کو یقینی بنانے کے لیے ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ اس وجہ سے جمعے کی صبح ہزاروں فلسطینی نمازیوں نے مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی میں فجر کی نماز ادا کی۔ بیت المقدس اور آس پاس کے علاقوں سے ہزاروں فلسطینی قافلوں کی شکل میں مسجد اقصی پہنچے اور فجر کی نماز ادا کی۔ یہ مہم قبلہ اول کی حفاظت اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ الخلیل یا ہبرون شہر میں بھی ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد ابراہیمی میں نماز ادا کی۔ فلسطینیوں کی یہ کوشش مسجد ابراہیمی کو یہودی رنگ دینے کی کوششوں کا رد کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع کی گئی ہے جس کا عنوان فجر عظیم مہم کی واپسی ہے۔ اس وجہ سے جمعے کی نماز میں بھی مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ فلسطینی لیڈر سمیرہ خلائقہ نے فلسطینی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمعے کو فجر کی نماز میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ ان کی اس اپیل پر فلسطینی مسجد اقصی میں اور مسجد ابراہیمی میں امٹ پڑے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے رفح ٹاؤن میں مشین گنوں سے فائرنگ کی۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے فلسطینی کھیتوں میں آنسو گیس شیلز اور بم دھماکوں کا استعمال کیا۔ اسرائیل نیوی وقفے سے فوج کے ساتھ مل کر فلسطینی کسانوں اور مچھروں کو ہراساں کرنے کے لیے ایسی کارروائیاں کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں شیرین ابو عاقلہ کے قتل کا مسئلہ جائے گا۔ الجزیرہ کی جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوج نے پچھلے دنوں بے رحمی سے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ لندن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وکیلوں نے بتایا کہ وہ ابو عاقلہ کا نام ان جرنلسٹوں میں شامل کریں گے جنہیں اسرائیل نے ہلاک کیا ہے۔ پہلے سے ہی ان جرنلسٹوں کی ہلاکت کا معاملہ عالمی عدالت ICC میں ہے۔ ابو عاقلہ کے خاندان نے درخواست کی تھی کہ ان کے قتل کا معاملہ بھی ICC لے جایا جائے۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، فلسطین جرنلسٹ سنڈیکیٹ اور انٹرنیشنل سینٹر فار جسٹس فار پیلسٹینینز کی نمائندگی کرنے والے وکیلوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ الجزیرہ کے یروشلم بیورو چیف ولید العمری نے بتایا کہ نیٹ ورک ابو عاقلہ کے قاتلوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے تمام قانونی راستوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ 51 سالہ ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوج نے جنین شہر میں اس وقت گولی مار دی تھی جب وہ اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کی رپورٹنگ کر رہی تھیں۔ بات یوکرین کی۔ رشیا نے یوکرین کے شہر لیمان پر قبضہ کر لیا ہے۔ رشیا کے حامی علیحدگی پسندوں نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ڈونباس کے اس اہم شہر پر مکمل قبضہ ہو گیا ہے۔ اس دوران یوکرین نے رشیا کی فوج کو آگے بڑھنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔
रशिया की फौज ने ईस्ट यूक्रेन के कई इलाकों में बमबारी तेज कर दी है। यूक्रेन के अहदेदारों ने यह बात मानी कि उनकी फौजों के पास हथियार कम हैं और सिपाही भी कम हैं। इस दौरान लुहांस्क में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में ताज़ा शेलिंग में कम से कम 9 लोग मारे गए। निप्रो टाउन में एक फौजी अड्डे पर रशिया के हमले में भी 9 लोग मारे गए। खैरसोन के गवर्नर ने बताया कि रशिया दफाई पोजीशंस मजबूत कर रहा है। एक नई रिपोर्ट में लीगल एक्सपर्ट्स के हवाले से इल्जाम लगाया गया कि रशिया यूक्रेन में नस्लकुशी के लिए उकसा रहा है और यूक्रेनी अवाम को तबाह करना चाहता है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि ईस्ट यूक्रेन में रशिया की कार्रवाइयां नस्लकुशी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया के हमलों की वजह से डोनबास इलाका गैर आबाद हो सकता है। उन्होंने कहा कि मॉस्को चाहता है कि ईस्ट यूक्रेन के शहरों को राख के ढेर में बदल दिया जाए। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि अब तक रशिया के हमले शुरू होने के बाद से यूक्रेन में 4000 से ज्यादा सिविलियंस मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक दफ्तर ने यह बात बताई, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ईरान ने कहा है कि दुनिया को अमेरिका की एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ईरान के एक आला सिक्योरिटी ओहदेदार ने रशिया के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों की मजम्मत की। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी ने रशिया के नुमाइंदे निकोलाई पात्रुशेव से ताजिकिस्तान के दारुल दोशांबे में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात करते हुए ये बात कही। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद धरना खत्म कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने किसी से कोई डील नहीं की है। उन्होंने दावा किया कि अगर वो इस्लामाबाद में बैठे रहते तो खून खराबा हो सकता था, इसलिए उन्होंने धरना खत्म किया। इमरान खान ने कहा कि किसी को इस्लामाबाद से वापसी को हमारी डील या हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। पेशावर में मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने कहा कि कई साल से करप्शन करने वालों को मुल्क पर थोप दिया गया है। इमरान खान ने कहा कि उनकी बाकी जिंदगी पाकिस्तानी कौम को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए होगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस्लामाबाद में जुलूसों के दाखिले पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाने का फैसला किया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क को हाईजैक करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई जाएगी। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान अब कभी इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान 6 दिन का अल्टीमेटम ना दें, वो 6 सदियों तक दोबारा इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। इस्लामाबाद में मरियम ने कहा कि इमरान खान का सियासी बयानिया दफन हो चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया। इमरान खान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि वो 6 दिन के अंदर नए इलेक्शंस का ऐलान करे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। ईरान से शुरुआत करते हैं। ईरान ने अपने एक ऑयल टैंकर को अमेरिका की तरफ से जब्त किए जाने की मजम्मत की है और स्विस सफारतकार को तलब करते हुए एहतजाज किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं, इसलिए स्विट्ज़रलैंड अमेरिकी मफादात की निगरानी करता है। तेहरान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने स्विट्ज़रलैंड के नाज़िमुल उमूर को तलब किया। इस जहाज़ को ग्रीस की समंदरी हदूद में जब्त किया गया, जिस पर ईरानी तेल था। ये रशिया का जहाज़ था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि अमेरिका से सख्त एहतजाज किया गया है और मुतालबा किया गया है कि फौरी जहाज छोड़ा जाए। स्विस सफीर ने यकीन दिलाया कि वो ईरान के पैगाम को अमेरिका तक पहुंचा देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि तेहरान में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कर्नल की हलाकत के लिए इसराइल जिम्मेदार है। इस रिपोर्ट पर इसराइल ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर गुस्से का इजहार किया। हाल ही में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कर्नल सैयद खुदाई को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओहदेदारों के हवाले से दावा किया कि इसराइल ने अमरीका को इस हलाकत के ताल्लुक से पहले से जानकारी दे दी थी। इसराइली फौज के ओहदेदारों ने इस ताल्लुक से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट और उन ओहदेदारों पर तनकीद की है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीस के वज़ीर-ए-आज़म के साथ आपसी ताउन बढ़ाने के बारे में बातचीत की। दोनों लीडर्स ने फ़ोन पर यह बातचीत की। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने यह बात बताई। उन्होंने आपसी ताउन के अलावा आलमी हालात पर भी बातचीत की। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में क्लियर कर दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके खिलाफ तमाम इल्जामात वापस ले लिए हैं। एंटी ड्रग्स एजेंसी ने इस केस में 6000 सफ़हात की चार्जशीट दाखिल की है और 14 मुलजमीन के नाम लिए हैं। अक्टूबर में मुंबई के साहल के करीब एक क्रूज शिप पर धावा करते हुए ड्रग्स जब्त की गई थी। 23 साल आर्यन खान उन 20 लोगों में शामिल थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन आर्यन का नाम मुलजमीन में शामिल नहीं है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि आर्यन और मोहिक के साथ सिवा तमाम मुलजमीन के पास ड्रग्स पाई गई थी। एजेंसी आर्यन खान और 5 दूसरों के खिलाफ मुनासिब सबूत जमा नहीं कर सकी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ एसएन प्रधान ने यह बात मानी है कि शुरुआती तहकीकात में कुछ घपले हुए हैं और इन खामियों के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्यन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 3 हफ्ते जेल में गुजारे थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू में आर्यन पर इल्जाम लगाया था कि वो ड्रग्स इस्तेमाल करने के आदी हैं और ड्रग्स सप्लाई भी करते हैं, लेकिन अदाकार के बेटे ने इन इल्जामात को रद्द कर दिया था। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने ड्रग्स केस में नाक़िस तहकीकात के लिए एक ओहदेदार समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारों को रिपोर्ट भेज दी गई है। लद्दाख में एक गाड़ी खाई में गिरने से 7 फौजी हलाक हो गए। ओहदेदारों ने बताया कि 26 सिपाहियों की एक टीम एक सरहदी मोर्चे की तरफ जा रही थी, लेकिन सड़क से फिसलने के बाद ये गाड़ी नदी में गिर पड़ी, जो तकरीबन 50 से 60% गहरी नदी थी। फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और तमाम सिपाहियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस दौरान 19 सिपाहियों की हालत नाजुक बताई गई है। ओहदेदारों को डर है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। बात करते हैं मंदिर मस्जिद सियासत की। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी में मुसलमानों से दरख्वास्त की कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज के लिए आने के बजाय अपनी अपनी मकामी मस्जिदों में नमाज अदा करें। मस्जिद कमेटी ने दरख्वास्त की कि जो लोग ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करना चाहते हैं वो अपने घरों से वजू करके आएँ। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने को एक अदालत के हुक्म पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो सर्वे के बाद हिंदू फरीक ने दावा किया कि वजू खाने में शिवलिंग पाया गया है, लेकिन मस्जिद कमेटी का कहना है कि यह शिवलिंग नहीं है बल्कि वजू खाने का फव्वारा है। इस केस की सुनवाई 30 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। हिंदू फरीक के बाद मस्जिद कमेटी ने भी अदालत से दरख्वास्त की है कि सर्वे के फोटोज और वीडियोस को मंजर आम पर लाने से रोका जाए। मस्जिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव ने यह बात कही। मुस्लिम फरीक ने इस केस में 5 हिंदू औरतों की दरख्वास्त की कबूलियत पर सवाल उठाए हैं। इंडिया में आजकल कुछ भी हो सकता है। पूरे मुल्क में ये फैशन चल पड़ा है कि किसी भी मस्जिद या किसी भी जगह के बारे में ये कह दिया जाए कि वहाँ मंदिर था, आप रातों रात शोहरत हासिल कर सकते हैं। ऐसे एक ताज़ा मामले में एक हिंदू तंजीम ने अब दावा किया है कि अजमेर की दरगाह एक मंदिर थी और अजमेर दरगाह के अहाते में भी खुदाई होनी चाहिए। महाराणा प्रताप सेना तंजीम के ओहदेदार राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया कि अजमेर दरगाह की दीवारों और खिड़कियों पर हिंदू अलामतें हैं। अजमेर में दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जिस पर हाजिरी देने के लिए पूरी दुनिया से अकीदतमंद आते हैं और उनके अकीदतमंदों में सभी मजहबों के लोग शामिल होते हैं। राजवर्धन सिंह परमार के इस दावे को दरगाह के खादिमीन ने रद्द कर दिया और कहा कि ऐसी कोई अलामत नहीं है। परमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह एक कदीम हिंदू मंदिर थी। दरगाह की दीवारों और खिड़कियों पर स्वास्तिक की अलामतें हैं। हम मुतालबा करते हैं कि एएसआई दरगाह का सर्वे करे। अंजुमन सैयदजादगान के सदर मोइन चिश्ती ने कहा कि ये दावे बेबुनियाद हैं, ऐसी कोई अलामत नहीं है। उन्होंने कहा कि हर साल लाखों हिंदू और मुसलमान दरगाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि दरगाह में कहीं भी स्वास्तिक का निशान नहीं है। ये दरगाह 850 साल से ज़्यादा पुरानी है। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में आज ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि इस दावे से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के करोड़ों अकीदतमंदों के जज्बात को ठेस पहुंची है। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों का जवाब दे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका ने ग्रीस समंदर के करीब ईरानी ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया। तेहरान में स्विस सफारतकार को तलब करते हुए एहतजाज किया गया। रशिया ने ईस्ट यूक्रेन के अहम शहर पर कब्जा कर लिया। कई इलाकों में खौफनाक बमबारी। रशिया ईस्ट यूक्रेन के शहरों को राख के ढेर में बदलना चाहता है, ज़ेलेंस्की का इल्जाम। पाकिस्तान में इमरान खान का धरना खत्म। हुकूमत ने कहा हमेशा के लिए इस्लामाबाद में जुलूसों पर पाबंदी लगाएंगे।
شیرین ابو عاقلہ کے قتل کا معاملہ عالمی عدالت لے جائیں گے، جرنلسٹ تنظیموں نے کیا اعلان۔ مسجد اقصی اور مسجد ابراہیمی میں لاکھوں فلسطینیوں کا اجتماع، نماز فجر کے لیے خصوصی مہم۔ اب اجمیر درگاہ کو بھی مندر قرار دے دیا گیا، ہندو تنظیم نے کہا دیواروں اور کھڑکیوں پر سواستک کے نشان ہیں، کھدائی کی جائے، خادمین نے دعویٰ رد کر دیا۔ آرین خان کو ڈرگز کیس میں کلین چٹ، نارکوٹکس بیورو نے تمام الزامات واپس لے لیے، سمیر وانکھیڑے کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔